today we are going to understand about the government budget and types of budget. Government budget chapter we have already discussed in the previous video. So if you want to check about the objectives of government budget, then components of government budget and sources of government budget, then you can go to the previous lectures and you can see. In this video particularly we will study about the types of budget. So simply if we say what are the different types of budget, so there are two basic differentiations. First one is your balanced budget and other one is your unbalanced budget. If you want to take the screenshot, first take the screenshot, then we will continue to the next explanation part. So in case of balanced budget simply means in budget we have understood that there are two elements, that is total receipts and total expenditure. These are the two elements. So in case of balanced budget, when total revenue is equal to total revenue expenditure, or in other terms we can say that budgetary revenue is equal to budgetary expenditure, then it is termed as balanced budget. Simple, it is very simple definition. When total revenue or total receipts is equal to the expenditure. And one thing we have to note is that the budget, in this budget everything is expected, means this expenditure, this receipts and this expenditure all are expected, because budget is made for the upcoming year. So everything what the government is taking to understand is about the expected things. Just yet government will expect this type of revenue, this amount of revenue, or this amount of expenditure the government has to do in the upcoming year. So when it is equal, it is balanced budget. In case of unbalanced budget, when total receipts is not equal to total expenditure, simple understanding process is that, then it is known as unbalanced. When we say that something is unbalanced, then there can be two possibilities. Either any one thing is greater or one thing is less. So apart from that same explanation only, we are here with the surplus budget and deficit budget. In case of surplus budget, when total receipts is greater than total expenditure, then it is known as surplus budget. Means the government has collected more receipts, collected or means going to collect. It is not will be collected, it is going to collect, because it is estimated more receipts and will do less expenditure. In case of deficit budget, it is just opposite of surplus budget, when government is planning to do more of the total expenditure and will collect less of the receipts. So this is all about your types of budget. I hope this particular topic is well understood by all of you. So we will see the next broad category of deficit budget in the next part. So in the previous video we have seen about the types of budget. So in this video we are going to see about the budgetary deficit. अब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए व्हाट इज बजटरी डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट क्या होता है, तो सिंपली आपको ये समझना होगा कि बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है. सिंपल, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीप्ट्स, और सिंपली वी कैन से दैट व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर टी इज ग्रेटर देन टी आर, उसी को बजटरी डेफिसिट कहते हैं. ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसके जो टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है. इंडिया के बजटरी डेफिसिट में देयर आर these three types of things, like revenue deficit, fiscal deficit, and third one is primary deficit. So now we will one by one see each and every type of deficits कि ये एक्चुअली होते क्या हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है और क्या इम्प्लीकेशंस है, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि डेफिसिट जो होते हैं, गवर्नमेंट एक्चुअली प्लान करती है इन सब चीज़ों को कि डेफिसिट को हम क्रिएट करते हैं कई बार. और ऐसा क्यों होता है कि जब हमको ये जरूरत लगा, गवर्नमेंट को ये फील होता हो कि यस इट इज नेसेसरी इन द कंट्री दैट एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज्ड इन रेस्पेक्ट टू द रिसिप्ट्स. व्हाटएवर रिसिप्ट्स गवर्नमेंट इज जनरेटिंग, रिसिप्ट्स कहाँ से आएगा, उसके सोर्सेस हैं अपने, जैसे टैक्स सोर्सेस है, नॉन टैक्स सोर्सेस है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट एंड सोर्सेस में अच्छे से बताया, आप विजिट करके उसमें देख सकते हैं.
इसमें क्या है, वो जो सोर्सेस हैं उससे सरकार रिसिप्ट्स कम ले रही है, बट एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू द एक्सपेंडिचर मोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो इनमें टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट तीन होते हैं। सबसे छोटा और सबसे अच्छा होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जो सबसे छोटा पैमाने पे किया जाता है। इन केस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी, इट इज डिनोटेड बाय आरडी, स्मॉल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप माइनस कर दीजिए, आपका रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट के केस में अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके आइटम्स क्या क्या है। ठीक है, तो हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसमें बजटरी रिसिप्ट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में देखा था, वो इसमें लिंक डाल दूंगा मैं प्रीवियस वीडियो में। उसमें वो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम क्या क्या होते हैं। ठीक, उसमें जो सैलरी वगैरह दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, वो सबको लेके, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का आइटम क्या क्या होते हैं, सबसे बड़ा वही आपका टैक्स सोर्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेस, उनको माइनस कर दिए, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपके पास, दैट सेकंड वन इज योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दी ऑल थ्री टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट। इसमें इसके निकालने के जितने फॉर्मूलाज हैं, आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूला, ऑल द पॉसिबल फॉर्मूलाज। देयर कैन बी अदर फॉर्मूलाज आल्सो, बट मैक्सिमम फॉर्मूलाज आर दिस। तो सिंपल अगर देखा जाए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, अब टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड टोटल रिसिप्ट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या चीजें हैं। रिसिप्ट्स वाले पार्ट में ये कैपिटल रिसिप्ट्स, व्हेन वी सी द कैपिटल रिसिप्ट, देयर इज एन एलिमेंट नोन एज बोरोइंग। इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसको अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूला में लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जितने फॉर्मूला है सब में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, व्हिच मींस दैट वी हैव टू लीव द बोरोइंग एज इट इज। उसको कुछ नहीं करना है, बोरोइंग को आप छोड़ दीजिए, बस बाकी जो रहेगा कैपिटल रिसिप्ट्स के बाकी पार्ट भी होते हैं, उसको आप ले लीजिए। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट है, बड़ा पार्ट है। So we can take the capital receipts part. Borrowing we don't have to take while calculating the formula. So in fiscal deficit is equal to total expenditure, means capital expenditure plus revenue expenditure को जोड़ के total expenditure बन जाएगा, और उसमें से total receipts को माइनस कर देंगे। total receipts मतलब capital receipts और revenue receipts को जोड़ के माइनस कर देंगे। सिंपल, इजी। और अदरवाइज वही चीज है, मैंने बड़ा करके लिख दिया है यहाँ पे। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे माइनस हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कैपिटल रिसिप्ट्स को जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट बन जाएगा। वही सेम चीज है, सेम फॉर्मूले का एक्सटेंशन वर्जन है ये। नेक्स्ट, थर्ड वन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज मोस्टली आस्क्ड इन दी 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, जो कि है आपका फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। दिस इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसमें से बोरोइंग फिर हटा देंगे, यहाँ पे मैं एक एरो यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आरडी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो उसको पहले आप यहाँ कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से प्लस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि इसका कोई अलग सा नाम नहीं होता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें भी कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग वाला जो पार्ट है, बोरोइंग वाले पार्ट को हर केस में यहाँ पे छोड़ना है। और लास्ट में आपका आता है, बेसिकली कई बार बच्चों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे सिंपली आस्क दैट फिस्कल बोरोइंग का अमाउंट दे देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर माना जाता है। तो ये 3-4 फॉर्मूलेज हैं जो आप बेसिकली आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के इसके देने लगे हैं। आज से 3-4 साल पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर अब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सीबीएसई इसमें देने लगा है, तो थोड़ा उसमें आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट वन होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये भी सिंपल है, इट इज ऑल्सो सिंपल। प्राइमरी डेफिसिट पीटी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो जो भी इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, अगर हम लोन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लोन लिया था ना, ये कैपिटल रिसिप्ट्स वाले पार्ट में। So whenever the government is taking the loan, so government has to do what? Government has to pay the interest on that particular amount of loan.
So whatever the interest capacity or borrowing capacity of the government is, government will adjust this interest payment from the fiscal deficit. Fiscal deficit जो भी आया है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर दीजिए, आपका सिंपल बहुत इजी टर्म में आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज कि क्या फॉर्मूला होते हैं किसके, तो फॉर्मूला वाली बात हो गई. अब जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है दैट इज द इम्प्लीकेशंस. right now in the examination they are asking about the implications. What are the implications of revenue deficit, what are the implication of fiscal deficit and what are the implication of primary deficit. तो मोटा मोटे हिसाब में अगर आप देख के चलेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट में तो सिंपल इम्प्लीकेशन है कि आपका गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो दैट मीन्स व्हाट कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट से. तो गवर्नमेंट ये सिंपल उसका इम्प्लीकेशन छोटे मायनों यही होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है रेवेन्यू डेफिसिट से, इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है. डेफिसिट मतलब कमी. तो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सर गवर्नमेंट इज डूइंग मोर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर कमिंग लेस टू द गवर्नमेंट, जो भी फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग होती है. इम्प्लीकेशन अगर देखा जाए आपका फिस्कल डेफिसिट का तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल डेफिसिट में इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और इनके सोर्सेस क्या होते हैं, जिसको हम पूरा एक अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में इसी को ही पूछा जाता है.